Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे आज हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगेन आपके लिए ये कोई भी एग्जामिनेशन में, कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन में, कोई भी लेवल पे आ सकता है। बट अगर आप अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट कर रहे हो और अगर आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का विषय चैप्टर है, तो आज का टॉपिक, आज का सॉल्यूशन आपको काम आएगा। मेरे पीछे क्वेश्चन दिया गया है, आइए इसे पढ़ लेते हैं। कहता है, द बैलेंस शीट ऑफ मामा, काका एंड बाबा। तो तीन पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 4:3:3, मतलब अपॉन 10। एक बैलेंस शीट दिया गया है, उसकी तारीख है 31 मार्च 2018। इसके सोल्यूशन में एक नया बैलेंस शीट बनेगा और उस नए बैलेंस शीट की तारीख जब पार्टनर रिटायर करता है, जो नीचे दिया गया है, काका, कौन है काका? सेकेंड पार्टनर रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2018, तो उसी दिन पर आपको नया बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ओके, सप्लायर मतलब क्रेडिटर, लोन न्यू बैलेंस शीट में जाएगा, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, capital account will go to the partner's capital, cash will go to cash account, data RDD, livestock, motor car, furniture, unless and until, जब तक किसी एसेट को बेचा नहीं है, आप सारी चीजें नए बैलेंस शीट में ट्रांसफर करोगे। प्लांट ऑल्सो, द शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म इज 2700। ये बताने की ये कोशिश कर रहा है कि काका जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, जो पूरी दुकान का रेप्यूटेशन है, उसमें से उसका रेप्यूटेशन, इज्जत, अच्छा नाम 2700 का है, तो आपको उसे वो देना पड़ेगा, आपको उसका गुडविल उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। बड़े आसानी से हमें 2700 रेडीमेड दिया है। सो रेडीमेड से मेरा मतलब ये है कि उन्होंने हमको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है, हमको सिर्फ उसका डेबिट क्रेडिट करना है, अकाउंट्स करना है। ओके, रेज्ड का। फर्नीचर को हमको 10% से कम करना है, मोटर कार को 12.5% हो जाएगा जी। लाइव स्टॉक, भेड़, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, अप्रिशिएटेड बाय 10%, प्लांट को तो 2 एसेट को कम, 2 एसेट को ज़्यादा। अ प्रोविजन ऑफ 2000 टू बी मेड फॉर क्लेम ऑफ कॉम्पेंसेशन। होता क्या है, कभी कभी फैक्ट्री की जो ज्योग्राफी होती है, जहाँ पे वर्कर्स बड़े बड़े मशीन के साथ में काम करते हैं, एक्सीडेंट, दुर्घटना हो सकता है, तो
उस दुर्घटना में जो वर्कर का नुकसान होता है उसकी भरपाई फैक्ट्री के मालिक को करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी जगह पे काम कर रहा है। तो उसको कहते हैं कॉम्पेंसेशन, कि हाँ आप मेरे लिए काम कर रहे थे, मेरी जगह पर दुर्घटना हुई, मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये एडजस्टमेंट कह रहा है कि अगर ऐसा आगे जाके हो, आप 2000 रुपये इसके लिए बचा के रखो। हो जाएगा जी, आरडीडी की कोई ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा जी। दी अमाउंट पेएबल टू काका जो रिटायर कर रहा है उसके लोन में आप रख दीजिए, हो जाएगा जी। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, हो जाएगा जी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अपना पुराना बैलेंस शीट है ना, उसको रफा दफा करते हैं। तो सप्लायर ऊपर आ गया, लोन ऊपर आ गया, ठीक मेरे पीछे जनरल रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ पार्टनर्स में 4:3:3, और जो कैपिटल बैलेंस है वो आ गया। मतलब लाइबिलिटी साइड खत्म, मेरे ऊपर कैश अकाउंट का बैलेंस आ गया और एसेट के दिशा में बाकी के एसेट जैसे थे वैसे आ गए। इतना मैं बोलूँ तो मैंने पूरा बैलेंस शीट का जो स्टेप 1 है मैंने वो पूरा कर लिया। इसके आगे द शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म, इसको हम कहते हैं गुडविल रेस्ड। जब पार्टनर रिटायर करता है उसको उसका रेप्यूटेशन, उसकी इज्जत पैसे में उसको दे दो। तो गुडविल रेज्ड का जो डेबिट होता है वो एसेट में आता है, और गुडविल रेज्ड का जो क्रेडिट होता है वो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे। क्योंकि ये सिर्फ काका मतलब जो रिटायर कर रहा है उसका है, तो आपको सिर्फ उसके खाते में लिख देना है और कुछ सोचना नहीं है, करना नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा आप गुडविल की कीमत जो है आप 2700 लिख लो, ये सिर्फ काका का है, तो हमने काका के खाते में लिख लिया। इसके बाद का एडजस्टमेंट, 2 एसेट कौन से, फर्नीचर और मोटर कार को हमको सबट्रैक्ट करना है। फर्नीचर को हम 10% से कम करेंगे, मतलब 1750, क्योंकि एसेट माइनस है ये डेबिट में आएगा। अगला मोटर कार है उसको 12.5% करेंगे, मतलब 500। अगला एसेट माइनस है, इसके लिए डेबिट साइड में आएगा। जब भी मैं यहाँ पे कमेंट्री कर रहा हूँ उसके मतलब मेरे पीछे उसका लाइव इफेक्ट हो रहा है। अगले 2 एसेट को आपको इंक्रीज करना था, जैसे लाइव स्टॉक को 10% इंक्रीज करना था, तो वो 1250 आएगा। क्योंकि ये एसेट प्लस है, ये क्रेडिट साइड पे आया। और उसके बाद प्लांट को 20% आपको ऐड करना है, मतलब 4500, क्योंकि ये भी एसेट प्लस है, क्रेडिट साइड पे आ गया। फिर चौथा एडजस्टमेंट, अ प्रोविजन ऑफ 2000, जगह बनाओ 2000। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आगे जाके कोई आपको ये पैसे पूछे, ये मैं आगे ऐसा होगा कि मुझे ये भरना पड़े, पे करना पड़े। अगर मैं कोई कोर्ट केस हार जाऊं तो मुझे ये पे करना पड़े, तो क्योंकि मुझे ये भुगतान करना है आगे जाके, हो सकता है ये मेरा लाइबिलिटी है। इसके लिए लाइबिलिटी साइड पे प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर कॉम्पेंसेशन के हो सकता है कि मुझे ये पैसा भरना पड़े। पहले, इसके पहले ऊपर लाइबिलिटी में ये नहीं था, ये 0 था। आई रिपीट, ये नहीं था, ये 0 था। तो आपको क्या करना है, वेल पहले 0 था, अभी 2000, तो ये प्लस हो गया। प्लस लाइबिलिटी प्लस कहाँ पे आता है, डेबिट साइड पे। हमने डेबिट साइड पे लिख लिया। तो ऐसा सोचना है कि पहले था 0, अब हो गया प्लस। पांचवा, आरडीडी नहीं चाहिए। कभी कभी आता है सारे डेटर्स भले हैं, आर गुड, तो अच्छी बात है ना, तो डेटर्स का 5000 बाहर डाल दो, आरडीडी को निकाल दो माइनस। आरडीडी तो लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी अगर आप सबट्रैक्ट करो
तो ये क्रेडिट में आता है। इतना करने के बाद और कुछ नहीं है, जो पार्टनर काका ने रिटायरमेंट लिया है उसके पैसे को उसके लोन में आप लिख दो। हाँ, वो चुटकी बजा के तो नहीं आता। पहले तो जो कैश अकाउंट है उसको मैं बंद कर देता हूँ, ऊपर आ गया, क्योंकि उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। जो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट है उसका क्रेडिट भारी है। डेबिट में 2000 का प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में 4:3:3 में बट जाएगा। उधर हुआ है 2, ठीक मेरे पीछे, आई रिपीट, ठीक मेरे पीछे होगा बाय, वेल अभी पीछे नहीं, अभी नीचे। सबसे पहले काका जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है उसका अगर हम टोटल करें तो उनका लोन आता है 20,175, जो ये मेरे बगल में लाइबिलिटी में आ गया। बाकी के जो पार्टनर्स है उनका पैसा तो बैलेंस ही है, पहला मामा का आंसर और दूसरा बाबा का आंसर, ये भी ठीक मेरे लाइबिलिटी बगल में आ जाएगा। जैसे ही आ जाए उसका टोटल करके आप लिख लीजिए बाहर, और एट द वेरी एंड बैलेंस शीट का आप टोटल कर लीजिए, जो अगर आपकी मेहनत और आपकी दुआ दोनों सुनी गई है तो सही दोनों तरफ पे आने वाली है। 72-200 कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स, उसका एक्सप्लेनेशन और उसके सॉल्यूशंस के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे। अगर आपके पास हमारे प्रति कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स का उपयोग करें। अगर आप नए हो सब्सक्राइब करें, पुराने हो तो लेक्चर के लिंक को दूसरों के साथ में शेयर ज़रूर करें। जब तक मैं आपको दोबारा ना मिलूँ, आप अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।